کی دنیا میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈویتھ ہے. ویسے جیسے ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا, ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ. اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کو انٹرنیٹ سلو ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا. تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنا بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو انٹرنیٹ کی سست روی پر حکومت پر برس پڑے. کہا ڈیجیٹل رائٹس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی. لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے دعووں سے بڑا کوئی مذاق نہیں. لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے دار اندرون سندھ میں آ کر دیکھیں. سندھ کو مزید بجلی بنانے کی اجازت بھی نہیں. اپوزیشن نے کمیٹی بنائی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں ایز اے اسپیکر اپنا رول ادا کروں. مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے. پارلیمنٹ کے فلور, پارلیمنٹ کی کمیٹیز, اور ابھی بھی ہم نے جمہوری ایک طرز عمل اختیار کیا کہ جس میں پارلیمنٹ میں ہی یہ مذاکرات ہو. حکومت اور اپوزیشن کی بڑی بیٹھک, مذاکرات کا پہلا دور مکمل. دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں نرم سیاسی ماحول. حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق. حکومتی ٹیم نے اپوزیشن سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا. اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں مذاکرات سے ملکی مسائل حل ہوں گے. بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. مذاکرات کا اگلا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا. سینیٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ مذاکرات کی پہلی نشست میں بات چیت کا ماحول اچھا تھا. دونوں کمیٹیوں نے اجلاس کو مثبت قرار دیا. مذاکراتی کمیٹی کے باقی ارکان عدالتی مقدمات یا ملک سے باہر ہونے کے باعث اس ہنگامی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے. دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیرسگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے, ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو. تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کو ملاقات ارینج کرتے ہیں. تو دیکھتے کب ہمارا ملاقات ارینج ہوتی ہے. 2 تاریخ کو ہماری جو میٹنگ ہے وہ 2 جنوری کو انشاءاللہ میٹنگ ہوگی. چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے. میٹنگ میں ہم نے اپنا موقف بھرپور طریقے سے سامنے رکھا. بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے بھی مطالبہ سامنے رکھا. بانی پی ٹی آئی سے رابطہ استوار کرنے کا بھی مطالبہ کیا. کھلے دل کے ساتھ جا رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے ہی, لیکن اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہوں گے. سر آپ مطالبات میں کیا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہیں, یہ جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کا, 26 نومبر کا, اور سیاسی اسیر قیدیوں. چیئرمین سنی اتحاد کونسل کا سیاسی اسیروں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. حکومت کے پاس آخری موقع ہے حالات ٹھیک کر دے. پی ٹی آئی کے 4 اہم رہنماؤں کی عدم موجودگی. مذاکراتی عمل میں تعطل. عمر ایوب, علی امین گنڈاپور, سلمان اکرم راجہ, حامد خان مصروفیت کے باعث شریک نہ ہو سکے. حکومتی کمیٹی میں اسحاق ڈار, راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, رانا ثناء اللہ, خالد مقبول صدیقی, ڈاکٹر فاروق ستار, سینیٹر عرفان صدیقی, علیم خان شامل. اپوزیشن کی جانب سے اسد کیسر, ساجزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس شریک ہوئے. مذاکرات میرا حق ہے. میرے گھر پر واپس جمہور کی قیادت آنی چاہیے. تو مذاکرات میں آئی وش دیم ویل. مذاکرات ہو چاہیے. جن باتوں پر ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ جی کہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو. جو ہمارے اکابرین گرفتار ہیں ان کو رہا کرو. تمام گرفتار رہنماؤں کی رہائی اور مینڈیٹ واپس کر کے صاف اور شفاف انتخابات فوری کرائے جائیں. سابق صدر عارف الوی اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا مطالبہ. عارف الوی نے کہا کہ نیک نیتی سے مذاکرات ہوئے تو کامیاب ہوں گے. اپوزیشن لیڈر بولے 9 مئی سمیت تمام واقعات کی انکوائری کے لیے کمیشن بنایا جائے. ہمارے جو 9 مئی کا کمیشن ہونا چاہیے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے. ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک, اس کا کمیشن ہونا چاہیے. ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں, الیکشن کا پروسیس, اس کا صاف شفاف انکوائری اور فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے.
गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं, पगड़ियाँ उछालने का सबक देने वाला आपका हमदर्द नहीं, स्कॉलरशिप्स के बदले में शुक्रिया नहीं चाहती हूँ, तलबा इंतशार का हिस्सा न बने। वज़ीर आला पंजाब की पीटीआई पर तनकीद। मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर किरदार कशी करने वालों का शुक्रिया, जिनकी वजह से मजबूत हुई। कोई माँ कभी अपनी औलाद को जलाओ घिराव की नसीहत नहीं करेगी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी का हम फैसला, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुलतवी। मकसद वफाकी हुकूमत को मज़ीद वक्त देना और हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार है। पीपल्स पार्टी की सीएसी का इजलास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से 26 दिसंबर को घड़ी खुदा बख्श में तलब किया गया था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म की होगी सदर से आज मुलाकात। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी भी शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं में हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात भी ज़ेर गौर आएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला आज भी मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि छुट्टियां आ रही हैं, हाई कोर्ट का कोर्स भी है, नई तारीख दे देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसला सुनने आया था, कुछ मालूम नहीं अब कब आता है। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई केस से डिस्चार्ज होंगे। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के एक और फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NH-46 से मुताल्लिक भी कार्रवाई रोकने का हुक्म। पीटीआई उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइंदा समात पर मुकर्रर करने की हिदायत। ग्रीन शर्ट्स छा गए, एक और जीत एक और फतह। जनूबी अफ्रीका को भी ODI सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम को तीसरे वनडे में शिकस्त का सामना। जनूबी अफ्रीकी टीम 308 रन के ताक़ुब में 271 रन बना सकी। कौमी टीम ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 308 रन बनाए, 36 रन से कामयाबी हासिल की। सदर वजीर आज़म चेयरमैन PCB भी कौमी टीम की जीत पर सरशार। ग्रीन शर्ट्स की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद के पैगामात। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच के दौरान स्टेडियम में एक तमाशाई खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। मैच देखने वाले जोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश का ऐलान स्कोर बोर्ड पर किया गया। स्कोर बोर्ड पर लिखा था, मिस्टर एंड मिसेस रॉबिंको, सेहतमंद बच्चे की पैदाइश पर मुबारक हो। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री, कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात। सर्दी बढ़ गई। भावल नगर, कसूर, कहना, पाकपतन और नाला खुर्द में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में भी ठंड का राज। गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरक़ी पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद। बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कल्लात में साइबेरियन हवाएं बरकरार। सर्दी के साथ ही गैस नायाब, खवातीन के लिए खाना पकाना एक इम्तिहान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी से आवाम परेशान। सारिफीन का कहना है कि गैस की किल्लत की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे भी अक्सर औकात नाश्ते से महरूम रह जाते हैं। हुकूमती इक़दामात भी नाकाम। कोरम में बदअमनी का पारा नीचे न आ सका। शहरियों का धरना जारी। पारा चनार की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। नवाम आज भी सहूलियात से महरूम। कारोबारी जिंदगी मुतासर, मेन शाहरा बंद। अशाए खुरनोश की क़िल्लत से कहर साली का खतरा। बच्चों की अम्बात में इजाफे का खदशा। मकीनों का हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा। गवर्नर सिंध इंसानी खिदमत के लिए सरगर्म। पारा चिनार के लिए अद्वियात समेत अशिया खुरनोश के ट्रक रवाना। कामरान टिसोरी कहते हैं, मुतासरा इलाकों में अजनास और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चों की जानें चली गईं। अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, यह मिडिल क्लास लीडर के नताइज हैं। गवर्नर हाउस सिंध के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कराची के बासियों के लिए पानी ख्वाब बन गया। मेन पाइपलाइन की मरम्मत 1 माह बाद मुकम्मल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फराहमियाँ अब शुरू। मुतादिद ताहाल पानी से महरूम शहरियों ने शिकवों के अंबार लगा दिए। बुनियादी मसला हल करने का मुतालबा। इलाका मकीन कहते हैं कि अब टैंकर भी नहीं मिल रहा, बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि ना ऑनलाइन टैंकर मिल रहा है, ना हम परचेज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी नहीं है कि हम उसको ख़रीद सकें। दूसरा, मिल नहीं रहा टैंकर, तो हम तो पीने के पानी के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन अब क्या करें, गुजारा कर रहे हैं किसी तरीके से। सिंध हुकूमत का जामियात के वाइस चांसलर्स को दूसरी मुद्दत देने का फैसला खत्म। तकर्री के सिलसिले में नए इश्तिहारात रोक दिए गए।
तकर्रुरी के लिए तरमीम शुदा इश्तिहार दिया जाएगा। PSD की शर्त में नरमी और ब्यूरोक्रेट भी उम्मीदवार होंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध की कई जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 3 हदें मजीद अबूर कर गया। मार्केट 4,411 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,13,924 पर बंद हुई। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA भी मुतहर्रिक। तफ्तान में स्पेशल टीम की तश्कील। बलूचिस्तान के रास्ते गैर कानूनी तौर पर ईरान और यूरोप जाने वालों की सख्त जांच पड़ताल। भिखारियों को सऊदी अरब जाने से रोकने के लिए सूबे के एयरपोर्ट्स की कड़ी निगरानी। एजेंट माफिया की भी शामत। FIA का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस पर छापा, 5 अफराद गिरफ्तार। सिंध के महकमा खुराक में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की खरीदारी और तरसील में करोड़ों की खुर्द-बुर्द की गई। शहीद बेनज़ीराबाद से मलीर मुंतकली के दौरान गंदम की हज़ारों बोरियां गायब। गंदम मुंतकली के दौरान 5 करोड़ की बदउनवानी हुई। MD के टेस्ट का दोबारा इनेकाद। 9 उम्मीदवारों का हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त गुजार ने सवालनामा जारी करने और तस्दीक तर MD के टेस्ट के हतमी नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा की। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत PMDC सखर IBA समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। गाजा के मुसलमानों पर जमीन तंग, पानी, खुराक, अद्वियात भी बंद। इसराइल के पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर बहिमाना हमले जारी। एक दिन में 50 अफराद शहीद। सिहोली रियासत की कमाल उद्वान अस्पताल खाली कराने की धमकी। मगरबी इलाके ताहाल मुहासरे में मजमूई तौर पर 45,259 फलस्तीनी शहीद, 1,07,627 जख्मी। लेबनान में इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की पामाली जारी। जनूबी लेबनान के इलाकों पर बमबारी। सहूनी वज़ीर दिफा पर ताहाल हिजबुल्लाह का खौफ तारी। कैट्स कहते हैं हिजबुल्लाह को दोबारा जनूबी लेबनान में ठिकाने नहीं बनाने देंगे। लेबनान में बैनुल अक़वामी परवाज़ों का दोबारा आगाज़। पनाहगुज़ीन भी अपने घरों को लौटने लगे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थीं, जिन्हें उम्मे अबीहा यानी अपने वालिद की माँ का लक़ब मिला। आप जन्नत की औरतों की सरदार हैं और इस्लाम की मिसाली ख़वातीन में से एक हैं। आपकी ज़िंदगी तक़वा, क़नाअत, इबादत, ईसार और कुर्बानी की आला मिसाल थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम विलादत को यौम मादर भी कहा जाता है। 20 जमादी उस्सानी माओं के आलमी दिन के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। बरतानिया में तेज हवाएं। क्रिसमस की खुशियां मान पड़ने लगी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड आइलैंड और दीगर इलाकों के लिए अलर्ट जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल। फेरू का स्केड्यूल भी मुतासिर। चीन के सूबे जिनजियांग में शदीद बर्फबारी। हर शय ढक चुकी। कई इलाके पाकिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। जर्मनी में क्रिसमस की रौनक बढ़ गई। हर किसी की खुशी दीदनी। एक शख्स ने तो अपने घर को 45,000 बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया। कतर में हॉट एयर बैलून से आसमान रंगीन। 5वीं सालाना हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में दुनिया भर से 60 बैलून तकरीब का हिस्सा बने। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद इस मंजर से लुत्फ अंदोज हुई। खुसूसी अफराद के लिए उम्मीद की किरण। जनूबी कोरिया ने माजूरों के लिए रोबोट तैयार कर लिया। चलने फिरने से महरूम लोग अब वॉक कर सकते हैं। श्रीलंका में एशियन कॉम्बैट चैंपियनशिप। भारतीय पहलवान को हराने और सोने का तमगा जीतने वाले मानी पहलवान सादिकाबाद पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर शहरियों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल। और मलका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उन्होंने 10,000 से ज़ायद गीत गाए। उनकी मधुर आवाज़ का जादू आज भी कानों में रस घोलता है।